Dear students, a very good shiny morning to all of you. Here I am Anja Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Here today, in this class, I would like to discuss the remaining questions. Among those questions, some questions given to you last class to do, and very nicely, all of you delivered the answer. But one thing uh, I would like to suggest you that you you will write your answer in your own words, not follow, don't copy, so that you can express yourself. So this point should be kept in your mind. Today in this class, remaining question, from here you can see there were three questions I already delivered to you. Now today in this class, I will introduce only these questions. Uh, you have to write about it. I will not explain the answer of these questions. So after that, we will read about the rock climbing. Last class we already discussed about the river crossing. Today the topic is our topic is for discussion rock climbing. So let's start. Here you can see the question number 4. Why do we need extra energy on the mountain? Already I explained the answer last class, and why they hot chocolate and such type of food items they took in the breakfast as the breakfast food items. So all these things I already explained, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्यों एक्स्ट्रा एनर्जी माउंटेन में चढ़ने के लिए ज़रूरी है। ये आपको सोचना है कि माउंट ऐसे हम जब प्लेन एरिया में चलते हैं तो उसके लिए जितना एनर्जी हमें चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी हमें माउंटेन्स में और हिल एरिया में चढ़ने के लिए क्यों चाहिए होता है। द नेक्स्ट वन इज़, हैव यू एवर हियर्ड ऑफ एनी वन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? व्हाट? This should be this answer should be on the basis of your experience, your hearing, your on the basis of your surrounding. Uh, so uh, you have been asked, have you ever heard? आप कभी सुने हैं किसी के बारे में जिन्होंने कुछ एडवेंचरस करके देखा है? तो क्या सुने हैं उनके बारे में आपको लिखना, व्हाट। नेक्स्ट वन इज़, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? पहले आपको पूछा गया कि आप सुने हैं एडवेंचरस कुछ एक्टिविटीज़ किसी के द्वारा करते हुए। अब आपको पूछा जा रहा है कि आप कुछ किए हैं एडवेंचरस कुछ। इफ़ यस, देन टेल योर क्लास। You have to write down, but because in this pandemic situation we are not physically present in our classroom, so you have to write down the answer, write about it in your own words. This point is very important. I again want to repeat it that you have to write your answer in your own words. Don't follow, don't copy from others. And we will know about the rock climbing. The last class there was the topic was river crossing, how the mountain river we can cross with the using by using sling, sting, rope, thick rope, hook, pitons, and many things. We can use many things to cross the river. Today our topic is rock climbing. Here you can see the picture. This is clear that the hilly area is very rocky. I already said about it, and the way through which the mountaineers uh, want to come there, uh, their target place. Those ways very rough, very tough, and very complicated. So here you can see the way, and this type of way you have to go through this way. This way is very rocky, you can see here, and very stony, and very rough and tough, and very hard to go upward. So here you can see a rope, thick rope,
that was connected to the upward of the parts of the hill, and through the rope, uh, one by one, the mountaineers go upwards and reach their target place. So the experience of the mountaineering team, देयर एक्सपीरियंस ऑलरेडी हम लोग उन लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर आज हम देखेंगे कि रॉक क्लाइंब उन लोगों ने कैसे किया था और क्या एक्सपीरियंस उनके साथ रहा था। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। उन लोगों का टारगेट था टेकला विलेज पहुंचना, जो कि पहाड़ के ऊपर भी बहुत सारे विलेजेस होते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मैं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो वहाँ अभी एक बहुत हिल रेंज एरिया है जहाँ हम गए थे। देखे थे कि उसमें 35 अबव 35 विलेजेस वहाँ हैं। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग टू नो दैट जो जगह हम इतना कठिनाई के साथ हम चढ़ना चाह रहे हैं, उस जगह में लोग ऑलरेडी रहते हैं। तो इट वाज एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर, 1600 मीटर हाइट में था वो। आवर रैक्सैक हैड ऑल दैट वी मे नीड, फूड पैकेट्स, वाटर बोतल, रोप, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सॉप, विंड चीटर। विंड चीटर का मतलब होता है जो ठंडा हवा वहाँ बह रही थी, फेब्रुवरी का महीना था तो ठंडा ना लगे इसलिए आप देखे होंगे रेनकोट जैसा एक ऐसा मटेरियल से बना हुआ होता है जो कि हवा हमारे शरीर को ना छू पाए, ठंडा हवा से हम प्रभावित ना हो पाए, इसलिए विंड चीटर यूज करते हैं हम लोग। हमारे जैकेट में भी कभी कभी ऊपर के हिस्सों में ये चीज़ विंड चीटर दिया रहता ताकि हवा अंदर ना पहुँचे। व्हिसल, ग्लूकोज, जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़ होता है, चना। तो ऑल दीज थिंग्स, if you want to do some adventurous with the mountain, then you have to get such type of things, and your bag will full of these things. So this point is very important, what type of things do you need to do such type of adventurous work, and some other snacks। तो ऑलरेडी ये लोग बहुत सारी चीज़ लेके गए थे, रक्सक बैग जो था उनका भरा हुआ था। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। मैं इसलिए बोला ना, टेकला विलेज में लोग रहते थे और वहाँ के लोग पहाड़ में स्टेप्स बना करके वहाँ खेती भी करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग है। जहाँ हम एडवेंचरस के रूप में जा रहे हैं, वहाँ लोग अपना जीवन बिताते हैं, अपना जीवन जीविका चलाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की खेती करते हैं। दैट इज़ वेरी अमेजिंग फॉर अस। वी सॉ कॉलोनियल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक विथ पेग्स एंड रोप्स। तो ये जो हम रस्सी की बात कर रहे थे, रस्सी ऐसे ही तो ऊपर नहीं होते, कभी कभी आप मूवी वगैरह में देखे होंगे उसमें हुक लगाया होता है और नीचे से फेंक करके उसको किसी बड़ा स्टोन के साथ मतलब लगा दिया जाता है, कंफर्म किया जाता है खींच खींच करके कि वो अच्छा से कनेक्ट हुआ है या नहीं, उसके बाद उस रस्सी के थ्रू जाया जाता है। यहाँ क्या किया गया है कि कोई उनके जो कैप्टन थे, इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने पहले ही जा कर के 90 मीटर पहले ही जा कर के क्या किए, उसको कनेक्ट किए, उस थिक रोप को कनेक्ट किए ताकि वो लोग उसको पकड़ करके 90 मीटर हाई में फ्लैट रॉक एरिया था जहाँ वो पेग्स पेग्स में से खूंटा रोप पिटन्स के बारे में मैं बताया था कि कुछ ऐसा होता है जिसको गाड़ करके हम खूंटा के रूप में यूज़ करते थे, और उसमें रोप्स को लगा देंगे तो नीचे की जो लोग हैं वो उसको पकड़ पकड़ करके एक एक करके वन बाय वन दे बिकम on that place. So we had been told to first observe the rock carefully and identify holes। तो उन लोग हमें कहा गया था, उन्होंने हमारे संगीता मैडम की जो एक्सपीरियंस हम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने बोल रहे हैं कि हमें कहा गया था कि हमें ऑब्ज़र्व करना है, टू फर्स्ट ऑब्ज़र्व। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी पत्थर कैसे कहाँ हाथ रखना, कहाँ पैर रखना है, केयरफुली, वेरी केयरफुली। आइडेंटिफाई होल्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, जो प्लेसेस को हम पकड़ेंगे, जिस प्लेस में हम हाथ रखेंगे, पैर रखेंगे, ऐसी जगह बहुत कम मिलता है रखने का, तो उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना। वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट। ये क्यों बोल रहे हैं संगीता जी? इन्होंने क्रॉसिंग रिवर के समय ये पीछे थे कि ताकि हमें मुझे कोई ना देख ले और मुझे ही नदी पार करने के लिए पहले ना जाना पड़े। लेकिन आज वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने किए थे, उनको
भेजा गया था पहले, वो जो एक्सपीरियंस, वो चैलेंजेस फेस करने के बाद जो कॉन्फिडेंस उनको मिला था, वो कॉन्फिडेंस के आधार पर आज उन्होंने पीछे नहीं गए। आज उनको लगा था कि आज मैं पहले जाऊँगा। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। आवर इंस्ट्रक्टर ट्राइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट। उनके इंस्ट्रक्टर पूरा कमर में रस्सी के साथ वो जो जैसे बनते हैं उस तरह से बांध लिए कस के। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप which was hanging. He started climbing as if he was running up. बहुत फर्स्टली वो क्लाइंबिंग करना शुरू किए। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप हो गए थे। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। तो रस्सी पकड़ा हुआ था, वो घूम रहे थे। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आप देख सकते हैं क्लाइंबिंग के समय ये अगर आप फ्लैट मानोगे, आप बादशाह क्या शाहरुख खान का एक मूवी था, उनमें दिखाया गया था कि दीवार में भी चढ़ सकता है, ऐसे ही जैसे ज़मीन में हम लोग चलते हैं वैसे। तो वैसे ही सोचना है, आपको फ्लैट सोचना है और 90 डिग्री एंगल में क्लाइंबिंग करना है। तो कीप योर बैक स्ट्रेट, और यहाँ जो बैक है ऐसे झुकना नहीं है, आपको बैक जो पीछे की ये है वो आपका स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल। तो keeping this in mind, I imagined the rock as flat around and started to climb up. So this was the instruction that was given by the instructor, and this is very important point. This should be kept in your mind. If you want to climb the mountain, so 90 degree angle, and you have to imagine the area, the way, the path as flat area. So do not bend, and you have to uh, straight. You have to be straight. Keeping this in mind, I imagined the rock as flat ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। उसको फ्लैट ग्राउंड समझना है, और ऊपर से रस्सी जो है उसको आप बिल्कुल बॉडी को सीधा रख करके 90 डिग्री एंगल में रख करके क्लाइंबिंग करनी है। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप इन ए स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। जब नीचे आते समय, जो चढ़ते समय ये थ्योरी, और नीचे आते समय वी हैड टू यूज़ द रोप इन ए स्पेशल वे कॉल्ड, इसको कहते हैं रैपलिंग। नीचे आते समय, ऊपर जाते समय जो रस्सी को पकड़ करके हम जा रहे थे उसको क्लाइंबिंग, और नीचे आते समय एक विशेष टर्म यूज होता है, इसको कहते हैं रैपलिंग। सो दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in the perspective view of exam or worksheet. I may ask you upcoming homework or worksheet, what is rappelling. Then you have to write about it, that rappelling is the term we call rappelling, the process special way through which the mountaineers coming down by using the rope। तो रस्सी को पकड़ करके नीचे की तरफ आना, दैट इज called as, that is known as rappelling in the mountaineering term. I did this with the same fearlessness। तो ये काम भी मैं बहुत ही निर्भय के साथ, मतलब डर नहीं था, डर ख़त्म हो गया था। डर के आगे जीत है, ड्यू का जो एडवर्टाइज आता है, इस तरह से। और नदी जब पार किए तो चैलेंजेस को फेस करने से कॉन्फिडेंस मिला। यहाँ वो आगे बढ़े क्लाइंबिंग की तरफ, क्लाइंबिंग किए, क्लाइंबिंग में जो रैपलिंग भी किए, तो रैपलिंग में भी उनका डर ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से हम एडवेंचरस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, और चैलेंजेस जितने हम फेस करते हैं उतने हम स्ट्रांग होते हैं, उतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और हम और भी एडवेंचरस काम कर सकते हैं, और भी साहस के साथ कहीं भी पहले आ सकते हैं। कम फॉरवर्ड हो करके, स्टेप फॉरवर्ड हो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम चैलेंज को फेस करें। ये सिर्फ माउंटेन चढ़ने और नदी पार करना नहीं है। हर काम में जब हम उस काम पे खुद को घिसड़ेंगे नहीं, खुद को उस काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, चैलेंज को फेस नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फियर रहेगा, फियरलेसनेस हम फील नहीं कर पाएंगे, और हम काम को आगे नहीं कर पाएंगे। सो दिस रिगार्डिंग 3 क्वेश्चंस I already ready to give you, and I hope you will do very soon. Thank you.